हाँ जी बेटे, लेट अस कंटिन्यू। अच्छा, फिलहाल तक की ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਲੋਪ ਕੱਢਣ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਜੋ ਪੜਿਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਕੱਢਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟ ਸਟਾਰਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ if three points are collinear, ठीक है, मान लो 3 पॉइंट है कोई, वो सेम स्ट्रेट लाइन च फॉल ਕਰਦੇ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਥਡਸ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਏ ਬੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਲਓ, ਫਿਰ ਬੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 2 ਦਾ ਸਮ ਤੀਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਮਡਾ ਰੇਸ਼ੋ 1 'ਚ ਕੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਰ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 0 ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਲਾਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਏ ਬੀ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਲੋਪ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੇ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਏ ਬੀ ਸੀ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੇ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਸਲੋਪ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਏ ਸੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू कि इफ दे आर कोलिनियर देन स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है। एंड भावें तुसी ए सी दे नाल ले लो। अगर मान लो सी पॉइंट इस लाइन च ए बी दी फॉल नहीं करता इत्थे किते, ठीक है, तो क्लियरली यू कैन सी कि जिहड़ी बी सी दी स्लोप है और ए बी दी स्लोप है वो आपस च बराबर नहीं आनी, ठीक है। एंड तीसरे तो भी बराबर नहीं आनी। तो इस करके अगर 3 पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन फॉल करते हैं, देयरफॉर ਕੀ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋ ਪਿਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੋਪ ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਲੋਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਸਿਰਫ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਰ ਕੋਲੀਨੀਅਰ then slope of the points taken two at a time is equal, ठीक है। ये सब तो आसान ਹੁੰਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੋਲੀਨੀਅਰਿਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ 1,2, ठीक है, एक बी ले लो 3,6 and let me take C as 9,18। वो कहता चेक करो कि कोलिनियर है कि नहीं, ठीक है। तो की करोगे, पहला स्लोप ऑफ ए बी कट लो, ठीक है। इन्होंने दोनों को ज्वाइन कर दी स्लोप, सो दैट इज y2 माइनस y1, ठीक है। इधर y2 लिया, इधर x2 लो, x2 माइनस इधर x कोऑर्डिनेट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4/2 दैट इज 2, ठीक है। हुण भावें बी सी दी कर लो भावें ए सी दी कर लो, तुहाडी मर्जी है। लेट मी टेक स्लोप ऑफ बी सी, जी कितना again another y the difference divide by corresponding x the difference, and you can now get 12/6 that is equal to 2। so therefore slope ਇਹਨਾਂ ਦੀ pair wise same है, ਇਹਦਾ मतलब बड़े तीनों point है, ठीक है, they must fall in one straight line, ठीक है। एक तो आ चीज़ अग्यो याद रखियो। second point, sometime एक word आएगा तो इंक्लिनेशन, ठीक है, इंक्लिनेशन। तो ਉਹਦੇ अंदर मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, लेट्स सपोज के मान लो 120 डिग्री है, ठीक है। सो इंक्लिनेशन अगर मैं कਹਾਂ आ लाइन किन्ने डिग्री ते इनकलाइंड या एक्स एक्सिस ਦੇ ਨਾਲ, सो जब इंक्लिनेशन पूछा जाए तो आप एक्यूट एंगल लवांगे, ठीक है। सो देयरफॉर दिस लाइन इज इनकलाइंड एट 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ठीक है। सो ये चीज़ नोट कर लो कि फास्ट इंक्लिनेशन ऑफ सम लाइन विद अदर लाइन देन गिव द एक्यूट एंगल, ठीक है। सो अगर मैं दी स्लोप पूछा देन सर्टनली आई विल यूज दैट एंगल। स्लोप ले मैं आ एंगल वरतूंगा tan ऑफ 120 डिग्री दैट इज माइनस tan 60 दैट इज -√3 इधर ले। और अगर मैं पूछा क्या लाइन एक्स एक्सिस ना किन्ने डिग्री ते इंक्लाइंड है, तो आई विल से 60 डिग्रीज, ठीक है। और एक ਇਹਦੇ कॉन्टेक्स्ट एक लास्ट नोट कि if I say कि लाइन
ਜਿਹੜੀ x ਤੇ y एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस ना इक्वली इनक्लाइंड है, ठीक है, लिख लो, इट इज इक्वली इनक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब बोथ x ਤੇ y एक्सिस ਦਾ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ x ਨਾਲ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਊਟ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, y ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਊਟ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, नो ਆ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੈ बिकॉज आ 90 डिग्री है, देयरफॉर आ कितना हो जाएगा 45, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब एक तो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲੁੱਕ ਐਟ ਥੀਸ ਲਾਈਨਸ, ਆ ਵੀ ਅਗੇਨ y ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, x ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਅਗੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆ 90 ਹੈ ਤੇ ਆ ਵੀ 45 ਤੇ 45 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ मतलब ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ मतलब बोथ x एंड y एक्सिस ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲੀ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੋਪ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ मतलब ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ मतलब ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੋਪ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੋਪ ਹੋਏਗੀ tan 45 दैट इज 1, ਔਰ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਕੁਅਲੀ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ this angle is 135, so slope आ जाएगी tan 135 minus 1, so we can make a note, ਹੁਣ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ अगर उन्हें दिता होवे ना कि लाइन्स आर विच आर इक्वली इनक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਲੋਪ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ +-1, ठीक है। कई बुक्स 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਐਬਟਿਊਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਟੇਕ ਇਟ ਟੂ ਬੀ एक्यूट, राइट। अच्छा ਹੁਣ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਲੋਪ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਲੋਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੱਭੋ, ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਲਿਖ ਲਓ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, फर्स्ट लिख लो फॉर्म स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, ओके। बिफोर वी स्टार्ट आप पहला देखिए कि ये है कि वाई वी ओनली नीड स्लोप एंड पॉइंट। अच्छा अगर मैं तुहानू कहां कि लेट्स से इस लाइन की स्लोप मान लो 1 है, मतलब एक्स का एंगल 45 है। अच्छा किन्नियां लाइनां होणगियां जिन्हां दी स्लोप 1 होएगी, मतलब किन्नियां लाइनां होणगियां जिहड़ियां एक्स दे नाल 45 डिग्री बनानी है। आंसर माई क्वेश्चन एंड हाँ जी आंसर इज 1 नहीं इनफिनिट। सारियां लाइनां जिहड़ियां दे पैरेलल भी हैगियां, ये सारियां दियां सारियां लाइनां दी स्लोप सेम है, ठीक है। सो इफ आई आस्क के 45 कोई स्पैशलिटी नहीं है, तो वैसे मैं एक इंस्टेंस ले लिया। बाकी अगर मैं कहां कि एक लाइन की स्लोप अगर लेट्स से m गिवन है, तो m स्लोप दियां किन्नियां लाइनां इनफिनिट जिहड़ियां आपस पैरेलल है, ठीक है। सो अगर मैंने स्लोप पता है तो एक डायरेक्शन आ जाएगी भी एक पास लाइनां जा रही हैं। अच्छा हुण मैं अगर तुहानूं पुछां, नाउ आई एम एडिंग वन मोर थिंग टू द प्रॉब्लम, लिसन केयरफुली, किन्नियां लाइनां जिन्हां दी स्लोप मान लो अगेन फॉर इंस्टेंस 1 है, मतलब एंगल 45 है, और एक पॉइंट चो पास कर दियां, लेट्स से पॉइंट है 2,3। किन्नियां लाइनां जिन्हां दी स्लोप मतलब एक्स नाल एंगल 45 है और पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, और एक पॉइंट चो भी पास कर रही हैं, ठीक है। हाँ जी की जवाब होएगा? यूनीक आही लाइन होएगी। क्यों? क्योंकि जिन्नियां लाइनां एक्स नाल 45 बनाउणियां गां पिछां बड़ियां सारियां होणगियां, बट वो इस पॉइंट चो पास नहीं करोगे। सो फॉर अ गिवन स्लोप means going to given direction and passing through one given point, there will be one unique line, ठीक है। तो ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ यूनिक होएगी, मतलब ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ और ਜਿਹਦੀ ਸਲੋਪ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ मतलब अगर ਮੈਨੂੰ ਸਲੋਪ ਪਤਾ ਹੈ, ठीक है, somehow, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੈ, let's say x1, y1, ਜਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। सो अगर मैनू लाइन के उपर एक पॉइंट पता है और लाइन की स्लोप पता है, तो उहदे तो मैं लाइन की इक्वेशन कढ़ सकना, ठीक है। इसे करके इस फॉर्म का नाम की है स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म, ठीक है। या वैसे एक होर तरीके ना समझो कि इस पॉइंट चो कितनी लाइनां जाऊगियां, इनफिनिट, भाई इधर भी जाऊगियां, ठीक है, इधर जिन्नी मर्जी लाइन ड्रा करे जो, समझ रही गल। सो इदा, सो इन्हां लाइनां चो हुण लाइनां तो इस पॉइंट चो बड़ियां जा रही हैं, बट इफ आई से कि किन्नियां लाइनां ये सारियां जो एक्स नाल इधर 45 बनाउणी है, आही लाइन होएगी एक कोई,
बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਐਂਗਲ 45 ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਐਂਗਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। So making some particular angle and passing through a given point will be only one unique straight line। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ equation लिख लीए, पहला equation लिख लो फिर मैं ड्राइव कर देना। and its equation is given by, ठीक है, this is मान के चलो the mother of all the formulas of straight line, मतलब ये पक्का ध्यान च होवे, मेजॉरिटी प्रॉब्लम च आपां इनू अप्लाई करांगे, ठीक है। and it is given by y minus y1 is equal to m times m की है ਉਹਦੀ slope x minus x1, ठीक है। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਹਦਾ, ਲਾਈਨ ਦਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਰਿਮਾਈਂਡ, ਆ x ਤੇ y ਕੀ ਹੈ, ਇਹ एक्स वाई है ਜਿਹਦੀ ਟਰਮ ਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। और मैं दसिया सी बिगनिंग च कल दे लैक्चर्स के एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ x + y = 4 ਤੇ ਇਹ एक्स वाई ਆ ਵਾਲੇ। m ਕੀ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ, ठीक है। स्लोप पता होगी इतने पुट कर दोगे। व्हाट इज x1 y1 आ, x1 y1 is any one point on the line, any one given point on the line, ठीक है। जे अपन दो दो पॉइंट पता है तो बहुत वधिया, अपन तो एक चाहिए। सो अगर अपन एक पॉइंट लग गया पता तो स्लोप लग गई। यही गल मैं कल कर रहा सी कि अगर स्लोप पता होएगी तभी आप इक्वेशन कट सकते हैं। सो स्लोप m कढ़न दे आप 6-7 तरीके आई मीन लास्ट क्लास वेखे है, ठीक है। सो स्लोप आ जाऊगी और लाइन के ऊपर कोई पॉइंट आ जाऊगा, इक्वेशन आ जाऊगी। ड्राइव कितों हुई है, दैट्स प्रीटी सिंपल टू ड्राइव एंड मोर ओवर है ही कुछ नहीं है। मान लो x1 y1 कोई फिक्स पॉइंट है लाइन के उपर एंड x, y की होंगे पुत्र एनी पॉइंट ऑन द लाइन जिहड़ा उन्होंने सैटिस्फाई करता है। और सानू पता है कि इस लाइन की स्लोप कितनी है, m है। तो लाइन के उपर दो पॉइंट है तो स्लोप कितनी होएगी, y minus y1, ठीक है, डिवाइड बाय x minus x1, दैट शुड बी इक्वल टू द स्लोप। देयरफॉर आ वाली टर्म इधर ले जाओ, y minus y1 इक्वल टू m टाइम्स x minus x1, गल खत्म, ठीक है। सो ये लिए की है, मैं वंस अगेन याद करना, सम हाउ लाइन की स्लोप लभो गिवन होएगी और गिवन देखना पेगा। एक तो चलो गिवन होएगी, दूजा जे नहीं तो वो लास्ट क्लास मैथड पढ़े उन्होंने चो देखो किहड़ा लगता है, उस तो स्लोप लग जाएगी पता। और लाइन के उपर पॉइंट कोई ना कोई एक गिवन होएगा, उदा x1 y1 आ गया, इत्थे प्लग इन करो तो आ एक्स वाई की टर्म च तुहाडे को कोई ना कोई इक्वेशन आ जाएगी। इनू याद कर लो, y minus y1 is equal to m times x minus x1, ठीक है। सो whenever you need to find equation always think in the term के भाई स्लोप आ जाए, ठीक है, तो पॉइंट आ जाए तो इक्वेशन आ जाए। चलो एक दो एग्जांपल्स लेने, मैं कहा कि आ एक लाइन है 5,2 पास कर रही है, ठीक है, एंड दैट इज मेकिंग एन एंगल लेट्स से 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। सो थिंक इन द टर्म्स जिहड़े मैं समझाया कि लाइन के उपर एक पॉइंट लभो घट्टो घट्ट। सो आ पॉइंट आ गया। सो दिस इज x1 इज 5, ठीक है, एंड y1 इज 2, x1 y1 आ गया। क्योंकि मैंने x के नाल एंगल पता है तो स्लोप सीधी आ जाएगी। सो m इक्वल टू tan 30, ठीक है, tan 30 कितना हो गया 1/√3। सो मैंने पॉइंट पता लग गया x1 y1, ठीक है, मेरे को स्लोप आ गई लाइन दी। सो नाउ आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y minus y1 equals m times x minus x1। so y minus the y coordinate of the point 2 is equal to slope which is 1/√3 x minus x1, x1 is 5, ठीक है। so that is √3y minus 2√3 इन उधर मल्टीप्लाई करता, x minus 5 y वाली टर्म एक पास ले जाओ, x minus √3y, ठीक है, प्लस 2√2 minus 5 इक्वल टू 0। आ तुहाडे को इस लाइन की इक्वेशन आ गई विच यू कैन सी ऑफ द टाइप ax, आ a है, आ by ते आ पूरा c साडी कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है। अच्छा देखो, अगर मैं लाइन की इक्वेशन पता है, इतो स्लोप कितनी आएगी, माइनस
कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज -√3 सो दैट इज 1/√3 ठीक है यही ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਸਲੋਪ ਆਪਾਂ ਸੋ ਲਾਈਨ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਲੋਪ ਆ ਜਾਊਗੀ ਸਲੋਪ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ दैट इज called slope and point form so need to get one point and the slope equation आ जाएगी ठीक है सेकंड लिख लो ਇਹਦਾ ਹੀ modified version basically ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਲਿਖ ਲਓ 2 point form second form of line is 2 point form ठीक है ਉਹ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦੇਗਾ ठीक है और इक्वेशन पूछेगा मान लो कहेगा जी लाइन है कि पासिंग थ्रू 5,2 एंड लेट्स से 3,1 ठीक है फाइंड द इक्वेशन तो नाउ आ जी लाइन है पुत्र तो पहला तो स्लोप कर लीए स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ठीक है दैट इज इक्वल टू 1/2 सो स्लोप आ गई लाइन दी और ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਲੋਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਆਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਟਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆ ਲੈਣਾ ਹੈ ਐਜ਼ x1 y1 ਸੋ ਫਾਰਮ ਕੀ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ y minus y1 is m times x minus x1 ठीक है so if I take this point then equation will be y minus y1 y coordinate is equal to slope half x minus x coordinate ठीक है इक्वेशन आ जाएगी लेट्स सिंप्लीफाई सो कितना आ गया 2y minus 2 is equal to x minus 3 so therefore x minus 2y is equal to 1 ठीक है आ थोड़े को लाइन दी इक्वेशन आ गई इस लाइन दी जड़ी इन्हां दोनों पॉइंटां चों पास कर दी ठीक है ना अगर मैं आ पॉइंट चूज करा तो इक्वेशन कर दें y minus y coordinate m half x minus x coordinate so let me just simplify 2y minus 4 equal to x minus 5 so therefore x minus 2y 5 उधर ले जाओ 5 minus 4 equal to 1 ठीक है so that was obvious कि हुण मतलब बहुत सारे पॉइंट पता है तो सिर्फ दो चाहिए और कोई भी एक दो चाहिए स्लोप वास्ते उन्हां चों कोई भी एक पिक कर लो लाइन दी इक्वेशन तुहाडे कोल सेम आ जाएगी ठीक है दैट इज कॉल्ड हाँ जी 2 पॉइंट फॉर्म ठीक है सो हुण आपां नूं इन्ना पता लग गया कि अपनी सर्च कितों शुरू होनी चाहिए कि स्लोप वाल ते लाइन दे उपर एक पॉइंट बस इस चीज़ नूं बार बार मैं रिपीट कर रहा कोई भी क्वेश्चन आवे लेट दैट बी ईजी प्रॉब्लम लेट दैट बी सम कॉम्प्लीकेटेड प्रॉब्लम जब भी किसी लाइन की इक्वेशन चाहिए है दिमाग च रखो कि यार सम हाउ उस लाइन के उपर पॉइंट देखो जोड़ा ईजी होएगा विजिबल होएगा नज़र आ जाएगा एंड फिर स्लोप लभो उस लाइन की ठीक है वो पुराने मैथड जोड़े आप कल सीखे उन्होंने चो आप स्लोप लभ सकते हैं ठीक है अच्छा ये नंबर 3 कुछ फॉर्म्स वाले आप पहला दोनों एक्सप्लोर करांगे कुछ होर पॉइंट लिख लो कुछ पर्टिकुलर लाइन्स जिमें अच्छा ax plus by plus c equal to 0 ठीक है अब मैं कल गल की थी कि मैक्सिमम तीन टर्म हो सकती हैं ठीक है x दी y दी ते कांस्टेंट ठीक है वट इफ जिदा हुण आ देखो लाइन के ये मैं कांस्टेंट टर्म नहीं लई इहदा की सिग्निफिकेंस है सो वो लिख लो कि इफ c इज 0 मान लो कोई लाइन है जिहदे कांस्टेंट टर्म ना हो मतलब सिर्फ x ते y दी टर्म हो ठीक है एट मैक्स तो इसका मतलब हो गया देयरफॉर द लाइन विल ऑलवेज ठीक है पास फ्रॉम ओरिजिन इसका मतलब वो जी लाइन है वो हमेशा 0,0 चों पास कर रही होगी मतलब आ सारिया जिहड़ियां लाइन है पुत्र जिन्नियां लाइनां 0,0 चों पास कर दी हैं ठीक है उन्हां सारियां दी इक्वेजन के अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं होएगी क्यों वेरी ईजी टू प्रूव कि जनरल लाइन मान लो ax plus by plus c इक्वल टू 0 अगर लाइन ओरिजिन चो पास कर दी पई है तो ओरिजिन इन्हां दी इक्वेशन नूं सैटिस्फाई करेगा इसदा मतलब x दी वैल्यू 0 ते y दी वैल्यू 0 इनू सैटिस्फाई करेगी देयरफॉर x 0 रखो 0 plus c इक्वल टू 0 देयरफॉर c इज इक्वल टू 0 इसदा मतलब c दी वैल्यू इत्थे 0 रख दो c 0 होने का मतलब की हो गया कि कांस्टेंट टर्म नहीं होएगी जस्ट लाइक दिस
यू कैन सी 0 0 इनू सैटिस्फाई कर दे। सो कोई भी लाइन जी ओरिजिन च पास करती है वो कॉन्सटेंट टाइम नहीं होएगी। एंड मोर ओवर कोई भी कर्व भी कह सकते हैं कि कोई भी कर्व जी ओरिजिन चो पास करती है, मतलब कि आ कर्व ले लो फॉर एग्जाम्पल, कोई आ कर्व है 2x² + y = 0। सो हुण स्ट्रेट लाइन तो नहीं, ठीक है। सो कोई मान लो कर्व है, जी भी कर्व है वी कैन सी कि 0 0 इनू सैटिस्फाई कर रहा है, ये मतलब हमेशा ओरिजिन चो पास करेगी, ठीक है। ये तो पहली चीज़ होगी। इफ एनी कर्व हैज़ नो कांस्टेंट टर्म, मतलब सिर्फ x से y दी टर्म है, दैट विल पास फ्रॉम ओरिजिन, एंड सेम इज ट्रू फॉर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये तो पहला केस हो गया। सेकंड आगे लिख लो कि लाइंस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये मैं लीनियर इनक्वालिटीज भी दस चुका, बट स्टिल मैं फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन एक बार मैं रिवाइज करा दा। सो पहला लिख लो लाइन पैरेलल टू लेट्स से x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। अच्छा, now we are talking about these lines, x y ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀ now ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਲਾਈਨ x ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 0, ਜਾਂ x ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਸਲੋਪ 0 ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਲੋਪ 0। ਸੋ ਲਾਈਨ ਪੈਰਲਲ ਟੂ x ਐਕਸਿਸ हैज़ स्लोप इक्वल टू 0, ठीक है। और दूजी गल कि यदी इक्वेशन जी है, मान लो आ किसी पॉइंट a, b चो पास कर रही है, ठीक है, या आप x1 y1 लिया तो लेट अस स्टक टू द सेम पॉइंट पे लाइन x1, y1 चो पास कर रही है एंड वो x एक्सिस दे पैरेलल है, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू y1। इट्स इक्वेशन इज गिवन बाय y इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, मतलब वो x की टर्म नहीं होएगी, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है वाली, ठीक है, एंड y की टर्म है। इज दैट क्लियर? सो आई गेस दैट्स इट। सो जिदा हुण आ वाला पॉइंट कितना होएगा, कैन यू अंडरस्टैंड कि क्योंकि लाइन x के पैरेलल है तो यदा y आ सेम रहेगा, ऊपर y वधना सी नीचे y घटना सी, सो y हमेशा y1 ही होएगा। सो यदी इक्वेशन है y इक्वल टू y1। इनू एवं भी समझो कि मान लो लेट्स से दिस इज y इक्वल टू 2, आप सज्जे खब्बे जावांगे, x बढ़ेगा लाइक 1, 2, ठीक है, 2, 2, 3, 2 और नेगेटिव साइड से जावे -1, 2, तो y कोऑर्डिनेट हमेशा 2 है। सो यदि इक्वेशन है y इक्वल टू 2 और दिस y इज ऑलवेज टू y इक्वल टू 2, राइट। सो y इक्वल टू कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। याद रखो उल्टा होता है, अगर x दे पैरेलल है तो y इक्वल टू समथिंग आएगा, और अगर बिल्कुल इत्थे आ जाता है 0 तो x एक्सिस आ गया, यदी इक्वेशन है y इक्वल टू 0 जी तुहानू ऑलरेडी पता है, ठीक है। सो अगे तो कभी भी देखा कि यू नो कि कांस्टेंट टर्म है वधो वध ते y की टर्म है, x की टर्म नहीं है, तो दैट विल बी अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। लाइक मैं कहा कि 3y - 2 इक्वल टू 0। now clearly that is y equal to 2/3, ठीक है। so this is a line parallel to हाँ जी x axis passing through this 2/3 ले लो, this is a 2/3 होएगा, थोड़ी लाइन आएगी y equal to 2/3, ठीक है पुत्र। और अगर नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगी y equal to नेगेटिव समथिंग, ठीक है, और x के पैरेलल ते स्लोप 0। इज दैट क्लियर? तो इनू एवं भी देख सकते हैं कि अगर लाइन ले लो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो स्लोप कितनी होंगी -a/b। अच्छा मैं कहूँ स्लोप 0 है, व्हाट विल हैपन, स्लोप 0 आ तो 0 मतलब आ न्यूमिनेटर 0, ठीक है, डिनोमिनेटर नॉन 0, इसका मतलब हो गया a इज इक्वल टू 0। सो अगर तुम a इज इक्वल टू 0 इतने रखोगे तो की हो गया, x वाली टर्म उड़ गई, ठीक है। तो इक्वेशन फिर वही बात की y की टर्म आ गई तो कांस्टेंट टर्म आ गई, ठीक है। सो इन एनी वे यू कैन सी दैट। तो जिदा एग्जाम्पल देखो मैं कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through these 2 points। now just
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਲੇ x ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ y ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਪ ਕੱਢੀ, ਸਲੋਪ ਕਿੰਨੀ ਆਈ y2 minus y1 on x2 minus x1 that is 0। ਨਾਓ ਸਲੋਪ ਆ ਗਈ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ the line will be parallel to what x-axis and if line is parallel to x-axis ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ y ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, therefore equation is y is equal to the y coordinate y equal to 4। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਰਮ ਲਾਓਗੇ, equation will be y minus y1 is equal to m, slope ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0 times x minus x1, so y minus 4 ਆ ਵੀ 0 ਹੋ ਗਿਆ, so y equal to 4, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਕੰਨ ਹੀ ਫੜਨਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਯੂ ਐਂਡ ਅਪ ਵਿਦ ਦ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜੇ x ਦੀ ਟਰਮ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਵੇ the line is parallel to x-axis and ਇਹਦੇ ਚ next ਲਿਖ ਲਓ lines parallel to y-axis, ठीक है। then अगर लाइन y ਦੇ पैरेलल है तो की होगा, पहली गल एंगल x देना 90 हो गया, ठीक है। तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ होगा दी स्लोप विल बी नॉट डिफाइंड, ठीक है, स्लोप इज नॉट डिफाइंड, या जब तुसी वो फॉर्मूला ला के देखोगे तो 1/0 किते आ जाएगा, ठीक है। दूजी गल ਉਹਦੀ इक्वेशन की होएगी x इज इक्वल टू दी x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट जो पास करी x इक्वल टू x1, सो ਇਹਦੀ इक्वेशन आ जाएगी। सो अगर x1 y1 है, दिस पॉइंट विल बी श्योरली x1 0, दिस x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, समझे गल। सो ਇਹਦੇ ਚ y ਦੀ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ठीक है। सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ केस पूरे हो गए, सो तीनों टर्म्स है। चलो पहला मैं ਇਹਦਾ एक एग्जांपल करा के फिर दसा। सो मतलब मैं कहां एक लाइन है 3,4 एंड 3,10 इन्हां चो पास कर दी इक्वेशन लभो। एक तो चलो देख ही लिया कि x कोऑर्डिनेट सेम है, या अगर आप स्लोप देना चाहते हैं तो कितना आ गया y2 minus y1 upon x2 minus x1, so certainly कितना आ गया 0 डिनोमिनेटर, therefore slope is, ठीक है, not defined, it's undefined, therefore the line is parallel to y axis and therefore the equation है x is equal to the x coordinate, कोई भी पिक कर लो, x सेम होएगा तभी लाइन y दे पैरेलल आई है, ठीक है। सो आ हो गया। सो अगर इको ही एक्स वाई प्लेन ते मैं तुहानू सारियां लाइनां जस्ट फॉर वंस शो करा कि अगर तीनों ही टर्म्स है एक्स दी भी वाई दी भी ते कांस्टेंट, तो वो लाइन केड़ी होएगी, ना वो एक्स दे पैरेलल, ना वो वाई दे पैरेलल ते ना वो ओरिजिन चो पास करेगी। सो अगर तीनों ही टर्म्स है, ठीक है, फिर टेढ़ी लाइन होएगी नॉट पासिंग थ्रू रीजन, इट विल बी सम टिल्टेड लाइन नॉट पासिंग थ्रू रीजन अगर तीनों ही टर्म प्रेजेंट। और अगर लाइन ओरिजिन चो पास कर रही दूजा वो फिर कांस्टेंट टर्म नहीं होएगी, ठीक है। सो अगर कांस्टेंट टर्म मिसेगा दैट विल बी पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। और अगर एहो जी कोई गलबात है कि जिमें y इक्वल टू समथिंग, ठीक है, विच x की टर्म मिसिंग है, दैट लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, और अगर y दे पैरेलल है वो इक्वेशन होगी x इक्वल टू समथिंग, लाइन विल बी पैरेलल टू। सो आही कॉम्बिनेशन है, सारियां यही पॉसिबिलिटी। सो ये ਤਾਂ मैं दसिया कई बार होंगे बच्चे ਨੂੰ लगता सर तो पॉइंट x इक्वल टू 3, पॉइंट नहीं, x इक्वल टू 3 है -3, y तो बड़े सारे होंगे। सो अभी स्ट्रेट लाइन है, सो सारियां लाइन है, अलग अलग सिग्निफिकेंस है, थानू मैं समझाते हैं। और सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ की सीखी है फिलहाल तक कि लाइन दी इक्वेशन कढ़ने वास्ते what we need the slope of the line somehow using the given information and using the methods we learned, and one point given point on the line। आ दोनों चीज़ां अगर पता लग गई उतों आप लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं y minus y1 is equal to the slope times x minus x1, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिन्ना थानू होर क्लियर होएगा।
ओके, और कहते हैं फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड स्लोप दिस। ये तो कुछ है ही नहीं, x1 y1 आ गया, स्लोप पता है तो y माइनस y1 द y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x कोऑर्डिनेट ते उस साइन दे नाल लो। सो 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4, x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, सो फटाफट करी जाइए, आ समझाई गल। सेकेंड के अंदर फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू रीजन ऑफ स्लोप m, मतलब वेरिएबल लाइन थ्रू m, वेरिएबल लाइन थ्रू रीजन सॉरी। सो की है लाइन 0 0 च पास कर दी, कोई भी स्लोप m है तो ठीक है, y माइनस 0 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 0, सो y इक्वल टू mx। ठीक है, मतलब m चेंज करी जाओगे, विल बी गेटिंग डिफरेंट लाइंस श्योरली पासिंग थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट लिख लो कि पॉइंट पता है और x एक्सिस ना ਉਹਦਾ एंगल पता है, तो क्योंकि x ना एंगल पता है तो स्लोप आ जाएगी, तो पॉइंट पता है तो स्लोप कितनी आएगी tan 75। समझा रही गल बेटे। सो वी नो द स्लोप, वी नो द पॉइंट, सो स्लोप आ गई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टेंजेंट ऑफ 75 डिग्रीज दैट इज इक्वल टू tan 45 प्लस 30, so tan a plus tan b 1 minus tan a tan b that is equal to root 3 plus 1 upon root 3 minus 1। you can further rationalize। आ स्लोप आ गई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ पॉइंट पता है, ठीक है, पुट करके इक्वेशन कर सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते जी इफ द लाइन दिस लाइन देती सानू 3x माइनस ए वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, एक और लाइन है a प्लस 2 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। फाइंड इट। ना सोचो दो लाइना आपस च पैरेलल तो की लिखाया सी, दे हैव सेम स्लोप, सो देयरफॉर m1 इक्वल टू m2। तो पहला यदि स्लोप कर लो m1 दैट इज माइनस, पहले तो एक्स वाई की टर्म देखो सेम साइड पे है बिल्कुल, फिर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y जो लेना साइन के नाल लेना, आ गल का ख्याल रखना। सो माइनस a बाय b, सो दैट इज इक्वल टू 3 बाय a। ठीक है, ऐसे ही m2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ब्रैकेट पाओ डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, therefore m2 is equal to a plus 2। so given है कि वो पैरेलल है, therefore उन्हां दी स्लोप बराबर है, therefore m1 equal to m2, so we have 3 by a is equal to a plus 2, so a square plus 2a is equal to 3 और a square plus 2a minus 3 equal to 0। so a इक्वेशन आ गई, इन्हों सॉल्व कर लो, फैक्टर बन जाने बड़े आराम ना। ठीक है, a दियां दो वैल्यू आ जानी। ठीक है पुत्र, ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। कहना जी इफ द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, ठीक है, इन्हों दोनों नू जिहड़ी लाइन ज्वाइन करती है इज मेकिंग ऑब्ट्यूज एंगल विद द पॉजिटिव डायरैक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो ये लाइन जिहड़ी है एक्स एक्सिस दे नाल ऑब्ट्यूज एंगल बनाउंदी है, ते थ्योरी च की पढ़ाया सी कि अगर ऑब्ट्यूज एंगल बनता है मतलब स्लोप नैगेटिव है। तो सिंपल की करना है, यदि स्लोप कड्डो उन्होंने लैस दैन 0 कर दो। नो स्लोप कितनी आएगी, हाँ जी y2 माइनस y1, कोई भी ले लो भावें 5 तो शुरू कर लो, भावें अगर ए y2 लिया तो फिर आही x2 लावांगे, 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, स्लोप आ गई। ठीक है, एंड दैट शुड बी व्हाट लैस दैन 0। तो आई गेस कर्व मैथड तुहानू याद है एहो जी इनइक्वैलिटी लिए। सो एनू 0 पुट करो, एक पॉइंट आ गया 5/2, एनू 0 पुट करो, एक आ गया 3, सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। वो कहता जी ओ एक्स दसो जब आ एक्सप्रैशन लैस दैन 0 नैगेटिव है इत्थे है। सो की आ गया आंसर, क्योंकि इत्थे इक्वलिटी नहीं है तो 5/2 भी नहीं आएगा, डिनोमीनेटर ते कदे भी नहीं आता। सो देयरफॉर m बिलोंग्स टू ओपन 5/2 to 3।
ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੋਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ obtuse हो जानी है। ठीक है, तो समझ गए? ओके, नेक्स्ट, if the line joining the points these two, ठीक है, तो ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ A है, ਇੱਥੇ B है, A भी line joining है, is perpendicular to this line। ठीक है, सो perpendicular सुनते सारी माइंड च पहला थॉट की आवे कि दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होएगा। सो ਇਹਦਾ मतलब AB की स्लोप अगर m1 ਲੈਂਦੇ ਆ, ठीक है, और दूजी लाइन की स्लोप अगर m2 है, सो देयरफॉर m1 टाइम्स m2 इज -1। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी शुड बी डूइंग, लेट अस कैलकुलेट m1। m1 is slope of the line joining AB। हाँ जी, y2 minus y1, 2 minus 1 upon 3 minus 2 that is 1। सो m2 कितना, दूजे लाइन की स्लोप, हाँ जी, वो प्रॉपर तुहानू लाइन दी है। लाइन की स्लोप किवें करते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, जो भी लिखे, ये तुहाडे कोल दूजे लाइन की स्लोप आ गई। एंड यू नो दैट एज द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, बेटा रब करदा हूं मैं, एज द लाइन्स आर परपेंडिकुलर देयरफॉर m1 into m2 इज इक्वल टू -1। अब मल्टीप्लाई होया तो आ गया तुहाडे को एक अगेन बड़ी सिंपल जी इक्वेशन आ गई, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, सो तुहाडे को ए की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड -1। ठीक है, बस गल खत्म, समझे गल? सो बस एक गल का ख्याल रखना, पैरेलल है तो सेम स्लोप, परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो स्लोप किवें कढनी है तो मैं कल काफ़ी जोर पा के तुहानू समझाया सी सारी चीज़ां। अच्छा, कहते कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, विच लाइन की स्लोप चाहिए विच बाइसेक्ट्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल। तो फाइन, इट्स बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, पहला क्वाड्रेंट वो एंगल में बाइसेक्ट करे तो इसका मतलब कितने डिग्री से जाए, 45 ते, बिकॉज दिस इज टोटल 90, तो आ एंगल है बराबर, देयरफॉर दिस शुड बी 45। जी साडी लाइन है एक्स के नाल 45 बनावे तो इसका मतलब स्लोप कितनी होएगी, tan 45 दैट इज इक्वल टू 1, राइट। सो y इक्वल टू एक्स, तो किचो लाइन पास कर दी है 0 0 चो, भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट नू एंड कटेगी तो रीजन च जाएगी ना, तो सानू पॉइंट भी लग गया पता, तो स्लोप भी लग गई पता, तो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 देयरफॉर y इक्वल टू x। ठीक है, याद रखो y इक्वल टू x इधर नू, तो अगर मैं कहूँ दूजे तीजे क्वाड्रेंट का, दूजे चौथे का सॉरी, इनू बाइसेक्ट करे तो फिर आ वाला एंगल 45 होएगा। सो दिस वन इज गोइंग टू बी 135। ठीक है, सो 135 इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, m डैश -1 tan 135, तो यदि इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 0 इक्वल टू -1 टाइम्स x माइनस 0, y इक्वल टू -x या x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर, सो आर लाइन दी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, एंड यदि x प्लस वाई सॉरी x माइनस वाई इक्वल टू 0 या x इक्वल टू वाई। ठीक है पुत्र, सो ये हो गया, अगर सेकंड पार्ट करो ट्राई तुसी। जो फिर कहना फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ y द लाइन थ्रू दीज टू पॉइंट इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू दीज टू। सिंपल, आना दोनों पॉइंटा चो लाइन जा रही है, आ होर दो अड पॉइंट है उन्होंने चो लाइन जा रही है, कहना जी लाइन आपस पैरेलल मतलब कि दोनों की स्लोप सेम। सो यदि स्लोप कर लो इन्होंने दोनों तो m1 7 माइनस y या y माइनस 7 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू इन्हों की स्लोप, सो 6 माइनस 4, ठीक है, अपॉन 0 माइनस -1, so that's it। So y minus 7 by 1 equal to 2 by 1, so therefore y equal to 9। ये मतलब थे y कोऑर्डिनेट 9 रख दो तो लाइन आपस च पैरेलल आ जानी। ठीक है, सो प्रीटी सिंपल। तो वो कहता विदाउट यूजिंग पाइथागोरस शो दैट दीज 3 पॉइंट्स
आर दी वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ठीक है, हुण तुसीं पढ़ लिया। राइट एंगल सुनते सार ही की दिमाग च आए कि मतलब सपोज करो वर्टिसेस आ 3, अगर पाइथागोरस ने तो ठीक है, तुसीं लेंथस कढ़ दो, डिस्टेंस कढ़ोगे आ वाला, फिर आ ते पाइथागोरस सैटिस्फाई कराओगे। हुण परपेंडिकुलरिटी शो करनी है भी जस्ट इट के अगर मैं एक इहदी स्लोप कढ़ ला m1, दूजे दी m2 ते तीजे दी m3, बिकॉज सानू नहीं ना पता भी किहड़े पॉइंट ते राइट एंगल है। तो अगर किन्हीं दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया, ठीक है, तो आप कहांगे कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਸ परपेंडिकुलर है, ਲਾਈਨਾਂ परपेंडिकुलर है मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो स्लोप्स कढ़ लो इन्हां दियां, सो m1 कढ़ लो एक, ठीक है, वी डू नॉट नो कि m किहड़ी किहदी है, तो इन्हां दोनों की स्लोप कढ़ लेने m ऑफ ab, so that is 4 minus 2 upon 0 minus 1, that is -2, so slope of bc, ठीक है। वैसे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, बट लेट अस सॉल्व, ठीक है। 3 minus 2 upon 3 minus 1, that is equal to 1/2। आई गेस इत्थे गल बन गई। इन्हां दी स्लोप्स का प्रोडक्ट आ -2 है, आ 1/2 है, मल्टीप्लाई करो कितना आ गया -1, -2 इंटू 1/2 इक्वल टू -1। ਇਹਦਾ मतलब आ दोनों लाइना A ਤੇ B ਨੂੰ ज्वाइन कर दी ਤੇ B ਤੇ C ਨੂੰ, ਇਹਦਾ मतलब आ B हो गया। A ਤੇ B ਨੂੰ ज्वाइन ਤੇ B ਤੇ C ਨੂੰ ज्वाइन कर दी लाइन आपस परपेंडिकुलर, ਇਹਦਾ मतलब A की है राइट एंगल ते है, मतलब राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, राइट, ठीक है। तो अगले ते चलते हैं कि कहता कि इफ ABC, थोड़ा करेक्शन करो ये, क्वेश्चन इज ACB are in GP, then write down the area of the triangle formed by this line with the coordinate axis, ठीक है। So first of all let us try to understand वो चाहता की है, कहता जी एक लाइन है ते ये जिहड़ी लाइन है कोआर्डिनेट एक्सिस ਨੂੰ मिलती है, तो ये लाइन कोआर्डिनेट एक्सिस के नाल जिहड़ी ट्रायंगल बन रही है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल विच इज सर्टनली राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका एरिया, तो पहला तो आप पॉइंट कढ़ लीए, आ किवें कढ़ांगे, लाइन कित्थे एक्स ਨੂੰ मिलती है, पुट y 0, ठीक है। सो कितना आ गया ax प्लस c इक्वल टू 0, x इक्वल टू -c/, सो आ वाला पॉइंट आ गया -c/a, 0। सो विद द लाइन मीट द y एक्सिस, पुट x 0, सिमिलरली थोड़े को आ गया, ठीक है, हाँ 0 0। हुण ACB आर इन GP मतलब c² इक्वल टू AB, आ भी इन्फॉर्मेशन गिवन है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ आ कढ़ लिया। हुण इस ट्रायंगल का एरिया किहड़ा होगा, हाफ बेस इंटू हाइट ਉਹਦਾ मॉड, सो एरिया इज हाफ बेस आ लेंथ, ठीक है, ठीक है। तो C और A की वैल्यू तो डिपेंड करेगा ना, इधर भी हो सकता है इधर, बट आप बाहर मॉड ले लिया तो सारा प्लस ही बनाता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है -c/a/b और आ बार मॉड, therefore that is equal to mod c² by AB, and c² is given to be AB, तो आ वाली वैल्यू कट के 1 आ जाएगी, therefore एरिया आ जाएगा हाफ स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो प्रीटी सिंपल, ओके। आज जेई का सवाल रिपीट भी हो चुका है, इस तो अलावा भी आ चुके हैं। कहना जी PS be the median of the triangle PQR, PQ ते R, समझे गल। ते चलो P कितना है 2,2, Q कितना है 6,-1, R है 7,3। PS इज द मीडियन, ਇਹਦਾ मतलब की होएगा S जिहड़ा है मीडियन की होंदा, पहले लैक्चर दस्सिया सी कि ओपोजिट साइड के मिड पॉइंट तो जावे, आ लाइन मीडियन है, ठीक है, और सर्टनली S ਇਹਦਾ मिड पॉइंट है इन्हां दोनों का। तो S के कोआर्डिनेट कितने होंगे, मिड पॉइंट ला लो 7 + 6 13/2, 1 - 3 2/2 1, S के कोआर्डिनेट आ गए। अच्छा आगे चलते हैं, कहना इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 - 1, सो इतने कितने पॉइंट होएगा 1 - 1, सानू लोकेशन के बारे नहीं पता, एक पॉइंट देता
equation of the line passing through this point and parallel to PS. Pretty simple now. Line चाहिए है ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਸਲੋਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਲੋਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਸਲੋਪ PS ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। तो ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਕੱਢ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ PS ਦੀ ਸਲੋਪ ਹਾਂਜੀ y2 minus y1 2 minus 1 upon x2 minus x1 13 by 2 that is 1 by 9 by 2 therefore that is equal to 2 by 9। ठीक है, सो स्लोप हो गई 2 by 9 ਇਹਦੀ और पॉइंट ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ठीक है, वैसे ऑप्शन देखिए आही एक लाइन है जिसकी स्लोप 2 by 9 है। कैन यू सी कि लाइन आप पता है स्लोप कितनी है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y 2 by 9। सो दैट वाज द ओनली लाइन जिसकी स्लोप 2 by 9 है। मान लो एक तो ज़्यादा ऑप्शन होंगे फिर आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो इक्वेशन कर लो, नॉट अ बिग डील, तो करनी होती है की होएगी y माइनस y कोऑर्डिनेट विच इज़ -1 प्लस आ जाएगा is equal to m times x minus the x coordinate। so ਇਹਨੂੰ simplify ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ठीक है, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, you get the idea। so that is 9y plus 9 equal to 2x minus 2। so 2x minus 9y minus 2 minus 9 minus 11 equal to 0। ठीक है, तो आई गेस ये समझ आ गई ਤੁਹਾਨੂੰ है ना। लेट अस डू मोर प्रॉब्लम्स। तो ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਥੀਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਲੋਪ ਪੁਆਇੰਟ है ना, ਤੇ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਾਟਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਿਸ ਐਂਡ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ। अच्छा एक लाइन ਦਿੱਤੀ है 3x minus 4y plus 2 equal to 0 और फाइंड दी इक्वेशन ऑफ अ लाइन जिहड़ी एदे पैरलल है। ठीक है, एदे एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, एक पॉइंट होर किते है लेट्स से -2, 3 इस पॉइंट चो पास करती हुई एदे पैरलल। तो ठीक है, प्रीटी सिंपल। मैनू एदी इक्वेशन चाहिए है, किसी भी लाइन की इक्वेशन लिए की चाहिए लाइन के उपर एक पॉइंट जिहड़ा कि सानू पता है, दूजा की चाहिए स्लोप का तरीका किहड़ा नज़र आ रहा है? ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ एक लाइन दी है। सो ਇਹਦਾ मतलब जिन्नी ਇਹਦੀ स्लोप है उन्नी ਇਹਦੀ और ਇਹਦੀ स्लोप कितनी है? लाइन की इक्वेशन एक्स वाई दी टर्म सेम साइड ते स्लोप इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 3/4। सो ਇਹਦੀ स्लोप आ गई, वही स्लोप ਇਹਦੀ है। यू नो द स्लोप, यू नो द पॉइंट, हेंस इक्वेशन लिख लो y माइनस y1 is equal to 3/4 times x minus -2। बाकी तुसी सॉल्व कर लियो। ठीक है, और अगर ਇਹਦੇ ਚ मैं क्या होंदा मान लो पैरलल ਦੀ बजाय ਇੱਥੇ मैं करदा परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर की होना सी? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which is perpendicular to this, मतलब ਇਹਦੇ perpendicular and passing through this। now I am interested in, let me just erase this mess। ठीक है, now I am interested in what? आ लाइन जी 2 -2 3 चो जा रही है और एदे की है परपेंडिकुलर है। हाँ, बिकॉज -2 3 चो तो बड़िया लाइना जाएगियाँ टेढ़ियां बेढ़ियां इदा, बट ये परपेंडिकुलर इको ही होएगी। तो अगेन सानू पॉइंट पता लग गया, इस लाइन की स्लोप चाहिए है, सीधी तो नहीं गिवन बट एक लाइन गिवन है जी ये परपेंडिकुलर है। तो यदी स्लोप कितनी कढ़ी है गिवन लाइन की 3/4। तो ये परपेंडिकुलर की कितनी होएगी? नेगेटिव रेसिप्रोकल -4/3। ठीक है, m1 m2 -1। ठीक है, सो स्लोप आ गई, पॉइंट पता है, इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x कोऑर्डिनेट। ठीक है, ऐसे। ठीक है, गल समझ आ गई। सो that's the point you need to taken care। अच्छा, कहना फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन
perpendicular to this and having x intercept equal to 3. So what does that mean, x intercept 3? x intercept ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਨ x x ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ x intercept ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨ ਜਿੱਥੇ x ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ 3,0। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ 3,0। ਸੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਬਚਿਆ ਕੀ ਸਲੋਪ। ਸੋ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇੱਕ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦਿਸ ਐਂਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਿਸ ਲਾਈਨ, ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਦਿਸ थिंग। तो ठीक है पुत्र, सो पॉइंट पता है लाइन दे ऊपर, स्लोप आ जाएगी, क्यों, क्योंकि इस लाइन दे परपेंडिकुलर लाइन दी स्लोप पता है, तो ਉਹਦਾ नेगेटिव रेसिप्रोकल ਇਹਦੀ आ जाएगी। तो इस लाइन दी स्लोप कर लो m1, that is माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 7, that is 1/7। ठीक है, भावें तुसी m1 m2 लेके कर लिया करो, भावें सीधा नेगेटिव रेसिप्रोकल। ये सब्जेक्टिवली शो करना तो लिख दो कि यदि m1 मान लो जी, यदि m2। now as the lines are perpendicular, वो कहानी लिख दो, therefore m1 m2 is -1, hence ठीक है m2 is equal to -1 by m1, therefore it will be equal to -7। रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव, सो यदि स्लोप थोड़े को आ गई -7, सानू पॉइंट भी पता है, सो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m टाइम्स x minus x। you can simplify and get the answer। ठीक है पुत्र, ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगेन पॉज करके ट्राई करो। कहते लाइन थ्रू दीज टू पॉइंट्स h,3 and 4,1 intersects this line, एक होर लाइन आ वाली, at right angle। तो इस लाइन नू कितने डिग्री ते मिलता 90 ते। तो अगेन परपेंडिकुलरिटी मीनस स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो आप इस लाइन की स्लोप m1 मान लेंगे, ऑलरेडी आ दोनों ने ज्वाइन कर दी लाइन की स्लोप m2 मान लो, एंड देयरफॉर m1 टाइम्स m2 इक्वल टू -1। तो व्हाट इज m1, यदि स्लोप माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 7/9। ठीक है, पहली चीज आ गई। एंड व्हाट इज m2, एस लाइन दी स्लोप, हाँ जी फॉर्मूला ला दो, y2 माइनस y1, 2 पॉइंट पता है ना, 3 माइनस 1 अपॉन h माइनस 4, दैट इज 2 बाई h माइनस 4। सो साढ़े को m1 आ गया, m2 आ गया। तो हाँ जी की करी हुण, लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, या कोई एक नो नेगेटिव रेसिप्रोकल इधर वे कर दो। सो देयरफॉर 7/9 into 2 upon h minus 4 equal to -1, so we get 14 multiplication इधर ले जाओ is equal to -9 times h minus 4, so 14 equal to -9h 36, so therefore 9h equal to 22, yes, and h equal to 22/9। ठीक है, so that's it। so again पैरेलल आते सेम स्लोप, परपेंडिकुलर आते स्लोप दा प्रोडक्ट -1, और तो तुसी सॉल्व कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट अच्छा कहता फाइंड दी राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट of the point joining this। अच्छा एक का पॉइंट है 3,4। ठीक है, अच्छा जब मैं ख्याल रखो मैं इदा बनाना तो मतलब ये नहीं कि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, दैट इज लाइक ये फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस बनाई दा भी इतने पॉइंट इदा एक्चुअल नहीं, क्योंकि जनरली मेरी आदत है कि आप फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी इनू बना देता इदा। ठीक है, सो डजंट मीन कि लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा वो कहता जी फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। राइट मतलब जिहड़ी लाइन इन्हां दोनों दे बाइसेक्ट करे, राइट मतलब परपेंडिकुलर। एदी इक्वेशन चाहिए ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस, मतलब इन्हां दे मिड पॉइंट तो जा रही है,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ठीक है। नाउ अगेन इक्वेशन लिखी चाहिए स्लोप एंड पॉइंट, तो पॉइंट भी देता उन्हें किदा मिड पॉइंट जा रही, मिड पॉइंट कितना है 3 -1/2 2/2 1 4 + 2 6/2 3, अब मिड पॉइंट आ गया। और स्लोप ਲਈ ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ, तो बेस ਦੀ स्लोप पता है, ठीक है। m1 कितना y2 - y1 अपॉन x2 - x1 2/4 दैट इज 1/2, ठीक है। लाइन 2 पॉइंट चो पास कर दी है, ये स्लोप आ गई, ठीक है। तो यदि स्लोप 1/2 ਤੇ परपेंडिकुलर ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ नेगेटिव रेसिप्रोकल -2, तो गल खत्म। तो स्लोप आ गई यदि लाइन के ऊपर पॉइंट पता है तो इक्वेशन आ जाएगी y - 3 = -2 टाइम्स x - 1 दैट यू कैन सिंपलीफाई, ठीक है। और आ चीज़ मैं फिर हाईलाइट कर दिया कि जब आप डायग्राम बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों के कई बार मन चाहता सर ये तुसी लाइन आ ली है तो आ लाइन परपेंडिकुलर ये तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। इदा नहीं होंगे, मतलब आ इतने मतलब वाई एक्सिस है, इतने एक्स एक्चुअली प्लॉट करोगे जिमें आ गया 3,4, ठीक है, तो -1,2 समझ आ रही गल बेटे। तो ये लाइन इदा की टेढ़ी क्रिटेड बनेगी, तो ये मिड तो जाएगी वो भी लाइन इदा कितने इस तरह बनेगी। सो वो तो सिर्फ आप सेक ऑफ कन्वीनियंस ड्रा कर लेगा, ठीक है। इदा सारे सवाल इदा ड्रा कर लो, सारे की स्लोप 0, दूजिया की वाई दे पैरेलल बना दो, ठीक है। चलो एनीवेज फिर कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस लाइन, पहले तो लाइन को समझो, बड़ा खलारा पाया। लाइन की है पहला तो एक्स दा कोफिशिएंट आ वाला k -3 × x, सो आ हो गया a साडा, ठीक है। आ की है y दा कोफिशिएंट -4 - k² × y, दिस इज लाइक b पूरा प्लस c आ सारा, ठीक है। दिस इज a x + b y + c, ठीक है। एक्स वाई की टर्म तो आही है ना, बाकी तो के इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई तो नंबर है कोई, ठीक है। फिर कहते हैं के दी वैल्यू लभो, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो 2-3 तरीके ना कर सकते हो। तो स्लोप कितनी होंगी है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, नेगेटिव भी आएगा, ठीक है। ये स्लोप आ गई लाइन की, ठीक है। जनरल स्लोप कर लिया आप। सो फॉर द फर्स्ट पार्ट वो कहते लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक तरीका सोचने का कि कोई भी लाइन एक्स दे अगर पैरेलल है, वो इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू समथिंग, एक्स की टर्म नहीं होंगी, तो अगर एक्स की टर्म नहीं है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 कर दो, k - 3 0। या एवं सोचो कि अगर लाइन एक्स के पैरेलल है वैसे ही स्लोप 0 होंगी, तो मतलब दिस स्लोप शुड बी इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस न्यूमिनेटर शुड बी इक्वल टू 0, k - 3 0 k = 3, ठीक है। सो अगर k की वैल्यू 3 होगी इतने पुट करो तो आ तो 0 हो जाना, ये मतलब स्लोप 0, और बाकी सिंपलीफाई करके थोड़े को लाइन की पूरी इक्वेशन आ जानी सी जे पूछी होंगी, बट उन्हें सिर्फ k की वैल्यू पूछी है तो तक आ गया, ठीक है। सेकंड बार लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर लाइन वाई दे पैरेलल है तो स्लोप शुड बी नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कद होंगी जब डिनोमिनेटर 0 होंगे। सो फॉर बी पार्ट दिस 4 - k² इज 0, k² = 4, देयरफॉर k = +-2, ठीक है। सो अगर k की वैल्यू +-2 होएगी तो दिस थिंग आ 0 हो जाना, y की टर्म उड़ जानी, लाइन आएगी x = समथिंग दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। समझ गए बेटे। एंड नेक्स्ट पार्ट द लाइन पासिस थ्रू रीजन, दैट्स प्रीटी सिंपल। लाइन पासिस थ्रू रीजन मतलब 0 0 सेटिस्फाई करेगा, मतलब x आ 0 हो गया, ठीक है। नाल आ जो भी मल्टीप्लाई हो भी 0 हो जाना, ठीक है। आ भी 0 प्लस आ सी बच गया। एंड यू नो कि अगर लाइन पास कर दी है ओरिजिन चो तो कॉन्स्टेंट टर्म 0 होंगी है, दैट वाज द कॉन्स्टेंट टर्म दैट शुड बी इक्वल टू 0, देयरफॉर k² - 7k + 6 = 0। इतने फैक्टर बना लो, ठीक है। सो k की वैल्यू आ जानी है थोड़े को 6 और 1, ठीक है। सो अगर आप k दी 2 वैल्यू लवेंगे इतने पुट करांगे, सो जो लाइन्स आनियाँ दे आर गोइंग टू पास थ्रू ओरिजिन, ठीक है। ओके
नेक्स्ट बस लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस तो कहता है इफ दीज टू लाइंस मीट एट 1,2 ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि इन्हां दोनों लाइनां दा जिहड़ा पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन है वो 1,2 है और सानू इन्ना पता जिहड़ा पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन है मतलब क्योंकि पॉइंट दोनों नू सैटिस्फाई करता जिहड़ा 1,2 पॉइंट है पहली लाइन नू भी सैटिस्फाई करेगा मतलब इनू भी तो 1,2 इनू भी सैटिस्फाई करेगा तो बस गल खत्म हो जाएगा एक्स की वैल्यू 1 ए वाई की वैल्यू 2 -2 सो थोड़े कोई एक इक्वेशन आ गई इदा 1,2 में सैटिस्फाई कर दो एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 2 -4b प्लस ए इक्वल टू 0 एंड यू सी थोड़े को ए ते बी च दो इक्वेशन आ गई ठीक है सो समझ रही गल बेटे तो जे ए बी च दो इक्वेशन आ गई तो ए बी चाहिए वो सॉल्व कर लो ठीक है सो की इक्वेशन आ गई थोड़े को इतों चक्को वैल्यू पुट कर दो ए दी वैल्यू कितनी आई है बी प्लस 2 इधरों इतने पुट कर दो सो 1 -4b प्लस b ठीक है इज इक्वल टू सो दिस इज 3 -3b इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1 एंड व्हेन b इक्वल टू 1 a इक्वल टू 3 ठीक है ये भी आ गया समझे गल सो दैट वाज प्रीटी सिंपल कि दो लाइना जिथे मिलती हैं वो पॉइंट है दैट मीन दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट मीन्स दैट मस्ट सैटिस्फाई बोथ द लाइन्स लंबी अप्रोच की हो सकती है क्योंकि बच्चा पहले एवं करे पहले इन्होंने दोनों साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट लभे फिर उन्होंने 1 2 दे इक्वेट करे तो रिवर्स करो क्योंकि ईजी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है तो पुट कर दो दोनों ठीक है अभी 2009 JEE का क्वेश्चन है कहता कि इफ द लाइन्स दिस दो लाइनें देती हैं एक L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू अ कॉमन लाइन इनू करो इंटरप्रेट कहता एक लाइन है कॉमन कोई दोनों ये जिहड़ियां दोनों लाइनां आ ये इस कॉमन लाइन दे की है परपेंडिकुलर है सो अगर ये दोनों लाइनां कॉमन लाइन दे परपेंडिकुलर है मतलब आपस की रिश्तेदारी हुई आपस पैरेलल है तो सिंपल सी गल उन्हें कही है कि दोनों लाइनां आपस च पैरेलल है तो अगर लाइनां पैरेलल है तो की करांगे स्लोप सेम कर देंगे तो m1 कितना माइनस कोफिशिएंट ऑफ x आ हो गया x का कोफिशिएंट ठीक है डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y विच इज -1 सो पहली लाइन की स्लोप आ गई p इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 m2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x विच इज दिस थिंग p स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y p स्क्वायर प्लस 1 एंड क्योंकि नॉन जीरो क्वांटिटी है बेटे इन्हों आप कट सकते हैं ठीक है देयरफॉर एदी स्लोप कितनी आ गई माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 ठीक है सो दैट्स इट हुण की कहंदा है कि ये दोनों लाइनां आपस पैरेलल है सो एज द लाइन्स आर पैरेलल देयरफॉर स्लोप सेम होगी देयरफॉर p इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 अगेन आ नॉन जीरो कटिया गया देयरफॉर p की वैल्यू आ गई -1 अच्छा हम पूछा की है दिस इज ट्रू फॉर एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ p एग्जैक्टली 2 तो थोड़े को एक ही p की वैल्यू आई है तो पहले ऑप्शन आ गया कि दिस इज ट्रू फॉर एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ p मतलब अगर p की वैल्यू -1 रखोगे दोनों लाइना आपस च पैरेलल आनी है ठीक है सो आई होप इन्ना थोनू क्लियर है बेटे सो चलो एक होर कर लेंगे लेट्स डू लास्ट प्रॉब्लम कहता जी द इक्वेशन अभी पुराना चाहिए सीगा पहला पार्ट बाकी मैं एडिशन लिखते हैं बस कर भरा अच्छा आ वाला सी पहला पार्ट जरा करने सो क्वेश्चन इज के द इक्वेशन ऑफ ऑपोजिट पेयर ऑफ पैरेललोग्राम आर दिस तो लुक एट दीज टू इक्वेशंस तो लगता है लाइन दी इक्वेशन नहीं है और है भी नहीं उन्हें पेयर क्या है तो इफ यू सी ये फैक्टर बनते पे ठीक है अब बन जाएगा थोड़े को x -2 इंटू x -3 इक्वल टू 0 शायद मैं लास्ट क्लास थोड़ा थोड़ा हिंट दिता ही कि अगर दो लाइना देती हैं L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0 राइट साइड से 0 होना चाहिए अगर मैं मल्टीप्लाई करदा L1 इंटू L2 इक्वल टू 0 इनू कहने आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स
की है दो लाइना इकट्ठियां करके। सो इदां दित्तियां तो देयरफॉर एक आ गया x माइनस 2 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 2, दूजी लाइन आ गई x इक्वल टू 3। सो बेसिकली ये दो लाइन है x इक्वल टू समथिंग, देयरफॉर लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। सो देयरफॉर आ दो लाइना आ गई y दे पैरेलल। इदां ही आ लैने हुण एक ही आ गया वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये आ जाएगा थोड़े को y की वैल्यू आ जानी है y माइनस 2 एंड y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड आई गेस मैं सही नहीं लिखा, दैट विल बी 1 एंड 5। सो y माइनस 1 एंड y माइनस 5 इक्वल टू 0, देयरफॉर y इक्वल टू ईदर 1 और y इज इक्वल टू 5। अगेन आ भी दो लाइन आ गई, y इक्वल टू समथिंग इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, सो पहला मैं आ करदा कि लेट्स प्लॉट इट, इनू प्लॉट करते हैं। ठीक है बेटे, सो x इक्वल टू 2 पैरेलल टू y इथों जाएगी 2। ठीक है, लेट्स से 2 कॉमा 0, x इक्वल टू 3 3 कॉमा 0। सो आ तो थोड़े को आ गई लाइन x इक्वल टू 2 विच इज पैरेलल टू y, x इक्वल टू 3। ठीक है, आपस पैरेलल, और y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 इथों ला लो है ना 0 कॉमा 1 चो, y इक्वल टू 1 इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, आ वाली लाइन होगी, एंड y इक्वल टू 5 इथों कितों आ लाइन आ गई। सो क्लियरली आ दोनों x दे पैरेलल। ठीक है, आ सारियां आपस परपेंडिकुलर, देयरफॉर जिहड़ी पैलोग्राम की गल कर रहे हैं वो रैक्टेंगल है। ठीक है, आप साइडां सारियां परपेंडिकुलर आ एडजेसेंट ते आपस पैरेलल ते आपस, सो देयरफॉर द पैलोग्राम इज अ रैक्टेंगल। असी प्लॉट करते अगर इक्वेशन लिखनी हो, दिस इज x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 1। अगर मैं कहां जी वर्टिसेस लभो आ वाले किहड़े किहड़े, हाँ जी वर्टिसेस किहड़े किहड़े पुत्र देखो, आ हो गया x2 y1, सो दिस इज 2 कॉमा 1। हाँ जी, दिस इज 2 कॉमा 5, x2 y5, सो दिस इज x कोऑर्डिनेट 3 इत्थे 3 कॉमा 5 एंड 3 कॉमा 1। ठीक है बेटे, अच्छा हुण जो क्वेश्चन पूछा सी उन्हें वो रिलेटिवली ईजी सीगा, वो कहना जी फाइंड आउट दी इक्वेशन ऑफ डायगनल्स। तो ठीक है, वो तुसी खुद कर लियो, मान लो आ वाला डायगनल है। ठीक है, सो ये डायगनल किवें कड्डांगे, 2 पॉइंट फॉर्म ला दो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायगनल ते की चाहिए, स्लोप चाहिए, सो वो सानू लग जाएगी पता 2 पॉइंट जो लाइन पास कर रही है। ठीक है, स्लोप कितनी आ गई 5 माइनस 1। ठीक है, अपॉन 3 माइनस 2 दैट इज 4/1। तो इस लाइन की स्लोप आ गई, और ये लाइन इन्होंने दोनों चो पास कर दी है, कोई भी एक ले लो, आ ले लें। सो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 1 इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस 2। ठीक है, सिमिलरली तुसी दूजा डायगनल भी कट सकते हो। ठीक है, सो प्लॉट भी हो गया। अच्छा आ देखो, दिस इज अब बेटे मैं रब कर दें सर। ठीक है, लास्ट पार्ट देखते हैं, लेट अस सी। कहता एक लाइन चाहिए है विच इज पैरेलल टू दिस, इस लाइन के पैरेलल इत्थे किते लाइन ला लो आ वाली इदां किते टेढ़ी, इहदे पैरेलल जावे विच बाइसेक्ट्स द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एक्चुअली न्याणे ये हमेशा गलत सोचते हो, कहते सर आ लाइन मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये बिल्कुल इक्वल एरिया होगा तो आ जी लाइन है आ बिल्कुल इक्वल एरिया कट कर दी है, बट आ लाइन तो यदि स्लोप 4 है, यदि स्लोप ही कुछ और है। ठीक है, तो बेसिकली एक प्रॉपर्टी याद रखो कि रैक्टेंगल है, अगर रैक्टेंगल दे सेंटर चों, सेंटर मतलब जिथे दोनों डायगनल मीट करते हैं। ठीक है, उहदे चों तुसीं कोई भी लाइन गुजार दो, वो हमेशा इक्वल एरिया कटेगी। यू कैन सी दैट, हाँ देखो हम जिवें आ इधरों जा रही है, तो एनू जस्ट ड्रॉप द परपेंडिकुलर्स। ठीक है, सो आ वाला एरिया तो आ रैक्टेंगल तो आ बराबर हो गया, इधरों जिन्ना आ वधिया इधरों वधिया तो उन्ना इधरों वध गया। सो आ वाला एरिया एदे बराबर है, एदा एदे, तो
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਧ ਚੋਂ ਕੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਨੋਟ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਐਨੀ ਲਾਈਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦ ਸੈਂਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਲੋਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਸਲੋਪ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਫ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਾਈਸੈਕਟ ਦੀ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਕਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ 5 + 1 6/2 3 and 3 + 2 that is 5/2। तो सेंटर लग गया पता, पॉइंट आ गया, आ लाइन ਇਹਦੇ पैरेलल ਆ, ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲ स्लोप भी आ गई, ठीक है। सो ਇਹਦੀ स्लोप कितनी है बेटे, -3/-1 3। सो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ भी स्लोप 3 होएगी। सो स्लोप आ गई, पॉइंट पता है। सो आह लाइन होएगी ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ पैरेलल ਆ और एरिया ਨੂੰ बाइसेक्ट करदी है। सो यू नो द स्लोप, यू नो द पॉइंट एंड ਤੁਸੀਂ इक्वेशन ਕੱਢ ਲਿਓ, ठीक है। सो आई गेस ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਕਚਰਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਮੈਟਰੀ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਊਗਾ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫॉर ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਬੋਰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ।